कि एक फ़ौजी अपने घर से बहुत दूर है, हमें मिल नहीं पाता है। The biggest responsibility while you are in the army is that you are responsible for so many lives. We were taking a turn, and then suddenly we were ambushed. We got under severe fire. वो कहने लगा कि साहब मेरे बच्चे हैं, उनको बताना कि मैं प्यार करता था. तो and then so no that's the situation where as a leader you need to step up. Major part of the process is your physical endurance, obviously, but there is also a mental angle to it. How difficult is to live a life where you feel that it might end tomorrow? Special Forces, we all have seen how Uri surgical strike was happened, and today we have Colonel Krishna Das TR from 10 Para SF. Welcome, sir. How are you? Thank you so much, Rishabh. I'm very good. How are you? All good. So, I would say कि 20 years into Special Forces and now 3-4 years, I think 4-5 years into corporate life. How is your today Saturday Sunday looks like than before? I mean, much more relaxed, I think, because I think when you are in the army, I mean, while you do have, a day off in a week when you are not in a combat zone, but then I think in the corporate culture, I think this is one of the best parts because you can totally cut off Friday evening, you can cut off and then, you can re-plug in on Monday. So, I mean, that's really, I think, a luxury. सर सो आई विल स्टार्ट विद दिस एंड वी कैन स्पीक इन हिंदी, हम दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे. हाउ वी आर कंफर्टेबल वी कैन गो इट. तो आपने अपनी जर्नी जब से स्टार्ट की थी एंड हाउ डिड यू एंटेड इनटू दिस स्पेशल फोर्सेस, क्या आपने कहाँ से पढ़ाई की थी, वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, हाउ डिड यू एंटेड इनटू दिस एंड हाउ वाज योर जर्नी, कैसे थी आपकी जर्नी? I'm basically from Kerala. I hail from a place called Thrissur. Though I was born in Kerala, but I think due to my father's nature of job, he was in CRPF. So I did my schooling in about 3-4 different places, and then finally I came back to Kerala again for my graduation and everything. So after college, उसके बाद आई मीन कॉलेज में जब मैं था तब मैं एनसीसी ज्वाइन किया था एंड इनफैक्ट आई वाज इन एयरविंग एनसीसी एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड विद माय पीयर्स सो माय ambition actually was to become a fighter pilot and I did go for the Air Force SSB I mean through NCC direct entry but then no, unfortunately there is a test called the PABT test for the pilots. So I could not clear that test and then so that's where the Air Force thing ended and then ultimately I think मतलब ये feeling तो हमेशा था कि forces में ही जाना है तो then I got into army and army में हमारे I joined the academy in 98 and I passed out in 99. So I am from Officers Training Academy, Chennai. So 99 when I got commissioned. In fact, when I got commissioned, my unit was infantry unit. I was commissioned into Gorkha Rifles, 4 Gorkha Rifles, and Gorkha Rifles में भी मतलब I think मेरा किस्मत अच्छा था कि वो unit I think within 2-3 months हम operational area में चले गए थे. In fact, Manipur was the area that I was there, and almost 2 years. And that's again active insurgency area. So that actually एक तरह से मेरे को help किया कि मेरा initial bedding in काफ़ी अच्छा हुआ, because when you are in operational area you learn things faster and also आपका जो connect है with the troops, that is much better than when you are probably not in an operational area. And then after 2 years then I वहाँ पे था तो then I had this urge and probably this dream of joining the special forces because obviously when you are in special forces you get tasked differently, you get tasked into more what do you call it, critical to say operations and आपका exposure अच्छा होता है, you learn new skills. So and then I think I was fortunate that I cleared the probation and then I got accepted into 10 Para Special Forces. And since then till the day of my retirement I was part of the special forces. तो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि जैसे कि
हर एक बेटा जो घर में होता है या फिर वो मोस्टली इंस्पायर हो जाता है, या बेटा या बेटी कोई भी इंस्पायर होता है अपने पेरेंट्स को ही देख के, फादर को ही देख के कि वो आर्मी में थे मैं भी जाऊँगा। तो आपके लिए क्या इंस्पिरेशन होता था? देखा है कि आपने, मेरे पापा सीआरपीएफ में हैं, तो आपको कैसा इंस्पिरेशन मिलता था कि मुझे भी जाना है, और मुझे क्यों जाना है? मतलब ऑब्वियसली आप देखते होंगे कि लाइफ इतनी डिफिकल्ट है, फिर भी ऐसी क्या इच्छा आती थी कि मुझे क्यों जाना है, क्यों बनना है? आई थिंक वो एप्टीट्यूड शायद मतलब एनवायरनमेंट से आ जाता है बचपन में, प्लस फिर हम व्हेन आप स्कूल जाते हैं प्रॉब्ली यू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम सिमिलर क्राउड एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड देन ऑब्वियसली आप मूवीज also play a big part, when you see, and then I think when you see somebody in uniform, I think you naturally get attracted, and then then you try to kind of emulate that path. So I think We also, normal audience, also normal people who are not into related with anything in our family, we also get attracted. या श्योर, एंड एक्चुअली मेरे जो कॉलेज सीनियर्स थे, जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे कॉलेज इन माय सीनियर बैच आल्सो देयर वर 4-5 पीपल हु गॉट सेलेक्टेड, 2 ऑफ देम टू एयर फोर्स एंड 2 ऑफ देम टू आर्मी. सो वो भी एक काइंड ऑफ आपके लिए मोटिवेशन हो जाता है कि व्हेन पीपल, एंड देन बिकॉज व्हेन दे कम बैक एंड आफ्टर व्हेन दे हैव द ट्रेनिंग, मिड टर्म ट्रेनिंग में आते हैं, एंड देन दे टॉक अबाउट what they have been through, so then you feel ki yaar, I think that's worth a life, to give it a try. So you told about that you are part of 10 para special forces. तो ये कौन सा स्पेशल फोर्स है, लाइक, और कितने डिफरेंट स्पेशल फोर्सेस होते हैं, एंड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इसमें? अगर हम स्पेशल फोर्सेस को ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो आज की तारीख में ऑल 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल हैव देयर ओन स्पेशल फोर्सेस. एंड अभी व्हेन इट कम्स टू आर्मी स्पेशल फोर्सेस, अभी स्पेशल फोर्सेस का अगर आप देखेंगे रोल क्या है इन द ओवरऑल, अगर आप वॉरफेयर में, तो इट्स बेसिकली दे आर सपोज टू insert, when you say insertion, basically going into the enemy area, insert into enemy area in a in more critical areas, and you are probably going much deeper into the enemy territory, and you're supposed to play a very important role towards the success of the overall you can say campaign or war. मतलब आप, you are part of the army, you are you're part of the larger plans. So and then for that you get trained differently, because now when you are supposed to, अगर आपको दुश्मन के बॉर्डर के उस तरफ डिप्लॉय होना है, तो अगर आप इंसर्ट कैसे करेंगे उसमें, तो आप या तो पैदल जा सकते हैं, या गाड़ी में जा सकते हैं, या फिर हवाई जहाज से जा सकते हैं. तो ये 3, फिर आप पानी के रास्ते भी जा सकते हैं. तो अब ये जो है, ये हर एक जो ज़रिया मैंने बताया, ये सारे ज़रिए अपने आप में फिर एक स्किल हो जाते हैं. एंड अमूमन हम जो देखते हैं अट्रैक्टिव जो लगता है वो है पैराशूट से आप जब लैंड करते हैं, आप हवाई जहाज से कुछ छलांग लगाते हैं, पैराशूट खुलता है. सो वो अमूमन हम टीवीज़ वगैरह में देखते हैं कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव है. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. मतलब जो आपका जो रोल है, तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं. एंड विद इन आर्मी स्पेशल फोर्सेज, नाउ सिंस इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, देन यू हैव यूनिट्स स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट एरियाज. तो जो इसने उरी का सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो कौन सा स्पेशल फोर्स था? they have specialized in the mountains. हाँ, मतलब आई थिंक वी विल नॉट गो इनटू स्पेसिफिक नेम्स, बट they are basically specialized into mountains. माउंटेन्स, तो ऐसे माउंटेन्स के लिए अलग होंगे, लैंड के लिए अलग होंगे? हाँ, माउंटेन्स के लिए होंगे. फिर आपका जो डेजर्ट है, उसके लिए यू विल हैव सम पीपल who are specialized into that. Then similarly, if you look at our areas in towards northeast and China, you will have different people, because आप उसका एम क्या है कि because once you are specialized for a task, then आपका जो इंस्टीट्यूशन नॉलेज है वो ओवर द ईयर्स बढ़ता है. आप उसी में रहते हैं, आप वहाँ का रहन सहन देखते हैं, वहाँ का ज़मीन टेरेन कैसा है वो पढ़ते हैं. सो देन आप वंस यू आर स्पेशलाइज, एंड देन आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है, देन आप शायद वहाँ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे. तो एम ये है. इंटरेस्टिंग. तो लाइक
while you've been served for 20 years, like for this particular duration, there might be have been so many attacks in India, like 26/11, पुलवामा एंड और भी बहुत सारे हुए थे. तो जब भी ऐसी खबरें आप देखते थे, सुनते थे, मतलब ऑब्वियसली बीइंग एन इंटरनल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम, क्योंकि सब एक ही टीम है, भले वो कोई भी हो, स्पेशल फोर्स हो, आर्मी हो, नेवी, इसलिए सर्विंग इंडियन एज अ कंट्री, लोग हम लोगों को सेफ रख रहे हैं. सो व्हेन यू यूज्ड टू सी सच काइंड ऑफ न्यूज़, मतलब आपके अंदर कैसे, लाइक हाउ डू यू यूज्ड टू फील कि क्या करना है? जैसे हम लोग ये ऐसे आम ऑडियंस में तो चलो हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए हैं, हम लोग ये बोल देंगे ये कर दो वो कर दो, बट यू बीइंग इन अ पार्ट ऑफ इट, यू बीइंग इंटरनल टीम, और ऑब्वियसली आपके साथी भी बहुत सारे गुजर जाते हैं. हाउ डू यू फील एट दैट मोमेंट? नहीं, पहला तो क्या है कि यू नो स्पेशली किसी भी फौजी के लिए जो ये हम ऑपरेशंस हैं करते हैं, वो एक यू नो एक क्या कहते हैं, एक इमोशनल रीज़न नहीं है. उसमें कहीं ना कहीं इमोशन है, बट यू नो इफ़ समबडी इज़ गोइंग फॉर एन ऑपरेशन एंड यू नो यू आर एलिमिनेटिंग सम टेररिस्ट, सो उसमें क्या है कि आपके पास यू नो यू आर नॉट डूइंग इट विद अ नेगेटिव इमोशन और किसी बदले की भावना से नहीं कर रहे हैं आप यू आर डूइंग इट एज ए प्रोफेशनल. यू नो आप, वो आपका काम है. यू नो आप उससे अपना इमोशन नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आप वंस यू आर अटैच्ड इमोशनली टू मच इनटू दैट, फिर आपका जजमेंट खराब होने के चांसेस होते हैं. सो तो पहला काम तो ये है कि बिकॉज एंड देन आप उसके लिए तैयारी करते हैं. सो आपको पता है कि जो आप उस इलाके में हैं, you know, unfortunately there are people, you know, who get injured or even killed in action. But then while it is sad and you feel bad about it, but then at the back of the mind आपके पास ये एक feeling होता है कि यार ये because you know you are expecting कि ये हो सकता है, because and you are also expecting that it could be me. obviously. You know, it could be me also tomorrow, or it could be me, it could have been me yesterday also. So now when you have that feeling at the back of your mind, that makes you better prepared to receive any bad news and also respond to any situation. You know, it is not a knee jerk reaction. आप immediately आप जब react करते हैं, it is not a reaction, it's a response. इंटरेस्टिंग. तो लाइक इसमें वही हो जाता है कि पहले से ही इंसान को पता होता है, जैसे आप लोगों को पता ही होता है कि या तो वो या तो मैं, कोई भी है, और ये एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. हाँ, आप जब लड़ाई के लिए तैयार होते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि यू नो सामने वाला भी कुछ ना कुछ तैयारी करके आया होगा, उसके पास भी हथियार है, एंड आप हमेशा ये भरोसा रखते हैं कि मेरा ट्रेनिंग उससे बेहतर है एंड मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ, तो मेरे पास सक्सेस के चांस ज़्यादा है. तो ये एक इस मानसिकता से आप चलते हैं तो आप आई थिंक देन आप गलती करने की संभावना कम हो जाती है. You served in Kashmir, Manipur, Sikkim also, Nagaland also, all these places. Not in Sikkim, but yes, हाँ, Nagaland, Manipur. तो how it was different when serving in Kashmir और उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में आ जाना, नागालैंड एंड ऑल, मतलब how it was different in terms of terrain wise बोल लें या फिर टेंशन वाइज इफ आई टॉक अबाउट, लाइक बिकॉज ऑब्वियसली कश्मीर इज़ द हाई टेंस एरिया, वहाँ पर POK भी है, एंड देन कश्मीर यहाँ पर नागालैंड के साइड में इतना आई डोंट थिंक इतना हाई टेंशन एरिया होगा, बट हाउ वाज इट डिफरेंट? नहीं, आई थिंक ये प्रॉब्ली आई थिंक ये टाइम का बात है. जब सो फर्स्ट टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन हाउ इट इज़ जो डिफरेंट, आई थिंक फर्स्ट इज़ द टेरेन. You know, any military operation, terrain plays the most important part because terrain dictates your tactics. Okay. So what you know, आप कैसे चलेंगे, क्या सामान लेके चलेंगे, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, ये सब कुछ वहाँ का टेरेन डिक्टेट करता था. सो अगर आप कश्मीर में हैं तो आपको एक अलग तरीके से टेरेन के हिसाब से और मौसम के हिसाब से तैयारी करना है, एंड उस हिसाब से आपके जो ऑपरेशंस हैं उसका जो ड्यूरेशन है उन सब पे आपके टेरेन का इफेक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग आप किस तरह के हथियार यूज़ करोगे उसका ही फ़र्क पड़ता है. नाउ कमिंग टू नॉर्थ ईस्ट अगेन, आई मीन कश्मीर, यू नो इट्स पार्ट हिमालय का पार्ट है. यू नो आपके पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं, लेकिन वेजिटेशन जो है वो अगर आप देखेंगे तो वेजिटेशन इतना डेंस नहीं है.
आपको वहाँ पेड़ मिलेंगे, पेड़ों के बीच में अंडरग्रोथ मिलेगा। तो जो बेसिकली आपको ये बताता है कि आप पहाड़ों में अमूमन आप क्रॉस कंट्री भी चल सकते हैं, आपको एक रास्ता फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, अनलेस की कोई ज़्यादा ही वर्टिकल क्लाइंब है या स्टीप है। बट अगर आप सेम चीज़ से अगर आप नॉर्थ ईस्ट में ले जाएंगे, मणिपुर, नागालैंड, जनरली टेरेन इज़ मोस्टली सेम। वहाँ पे आपको हिल्स आर नॉट टू हाई compared to the Himalayas, compared to Kashmir, but the relative gradient is very steep. Hills, may not be that high as Himalaya, but आपका जो gradient है that may be more. The type of vegetation is different. There are very thick vegetation, bamboo forest, जिसमें आप रास्ते पर ही चल सकते हो, आप रास्ता छोड़ नहीं सकते। वहाँ पे इतने कई जगह पे ऐसे घने जंगल हैं जहाँ पे दिन में अंधेरा होता है, दिन में अंधेरा होता है, मतलब इतना कवर्ड होता है वो बैम्बू से। एंड तीसरी चीज़, वहाँ पे बारिश बहुत होता है, सो विच ऑल्सो हैज़ विच ऑल्सो डिक्टेट्स व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग आप कैरी करोगे, किस तरह से आप चल, बिकॉज बारिश होगी तो ऑब्वियसली कीचड़ होगा, फिसलन होगा, देन वहाँ पे जोंक, ये सब कीड़े, मच्छर, अगेन इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। मलेरिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मच्छर हैं। सो ऑल दिस थिंग्स ये आपको डिक्टेट कराता है कि आपका वहाँ का, सो दोनों में टेरेन में अलग है। देन यू लुक एट whom you are fighting against in both these places. So and उनका आइडियोलॉजी क्या है, and they are different. So moment like Kashmir, everybody knows it's more a proxy war which is led by our adversary, which is Pakistan there. So and the kind of people who come in, the terrorists and who come in, say in Kashmir, their method of fighting is also different, because it depends on how they are trained. उनका जो philosophy है तो वो अलग होगा. Whereas when you come to northeast, it started as in fact it is our oldest insurgency. It started in the 1950s, Nagaland. So there, northeast, they are more organized in the sense, here it's probably, you still have groups, you will have groups like say Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Toiba and all those things, and each of them have their different footprint of how they operate. But here it's more like you're dealing with an organized force, because here अगर आप say NSA and IM है, so उनका जो तौर तरीका है वो पूरा एक आर्मी की तरह ही है. वो प्रॉपर ड्रेस, उनका प्रॉपर फौजी ड्रेस होता है, पता भी नहीं चलता कि वो उनका ड्रेस का पैटर्न अलग होगा. बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो बनावट है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसमें सेम हायरार्की है जैसे आर्मी में होता है. एंड उनका जो लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग इज एज गुड एज एनी अदर आर्मी. सो now when you are against somebody like that, you have to prepare differently. You have to, and you have to have that kind of planning and intelligence. So here it's more organized, and you would say जो something that you will say something like a fidain, जो जैसे यहाँ होता है कि there is a मतलब fidain basically is a person who comes with a name that he has to die that day. अकेला बंदा होगा, he may have a bomb around him or a grenade or something. That's a different tactic, because he doesn't want to live for another day. Whereas in the northeast, in any of these groups, you will find that because they are more organized, they will not they will never have this kind of tactic wherein somebody is coming as a say a kamikaze, who wants to sacrifice himself. Never, because they basically want to live to fight another day. तो सबसे डिफ़िकल्ट क्या है फिर? मतलब ऑब्वियसली सब कुछ ही डिफ़िकल्ट है. तो एक होता है जो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, और एक जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जिसको हम लोग देख के पहचान जाते हैं. हर एक का अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है. मतलब आप से दैट इज हाउ यू हैव स्पेशलाइज्ड पीपल डीलिंग विद स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ दिस वन. So that is how you want to have long term expertise developed. So that's how you have special forces for different areas. तो अब ऐसा होता है कि कभी कभी मान लो फॉर एग्जांपल, कभी कभी हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल कभी नॉर्थ ईस्ट में टेंशन बढ़ गया, कभी पीओके में टेंशन बढ़ गया, तो ये होता रहता है ऑब्वियसली. तो ऐसा आप
आपके पूरे ड्यूरेशन में देखा कि आपने कि इस वाले पर्टिकुलर एरिया में इट इज़ ऑलवेज ही हाई टेंशन, यहाँ पर हमेशा से ऐसे फोर्सेस लगे रहते हैं कि जब भी वो 24 घंटा, और वो भी हाई मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा आर्मीज रहती है वहाँ पर, ऐसा कौन से एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन? आई थिंक वो तो हमारा कश्मीर है जहाँ पे हमेशा से मतलब आपका जो आप जो मान लीजिए लेवल ऑफ टेंशन हमेशा से जो हमारा LOC है, LOC इज़ इट्स बेसिकली एक्टिव एरिया, तो वहाँ पे हमेशा से कुछ ना कुछ होता रहा है। प्लस 90s के बाद से कश्मीर वैली हैज़ ऑलवेज बीन active. Kashmir Valley, both, if you look at Kashmir Valley, it's both sides. It is the South Kashmir as well as the North Kashmir, and also areas across the Pir Panjal जो हम बोलते हैं, जो आपका सुरनकोट एंड दैट एरिया, तो वो 90s के बाद से हमेशा से एक्टिव रहा है वो, मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी और वायलेंस हैव गॉन अप एंड डाउन, but I think continuously since 90s that has been active. While Northeast started very early in the 50s, in fact Mizoram was one of our toughest insurgencies that we have fought, which many people don't, though it ended before I joined the army. But when we learn about those things, because so there have been phases where Northeast was actually in 50, say from 50s to the 90s, so it has been active, whereas Kashmir started active only after 90s. 89 is I think where we had the first incident wherein the Air Force convoy was attacked. So otherwise till 90s Kashmir was one of the prized locations to go, and so prize posting for people. Even during 1971 war also, I don't think कश्मीर में उतना हाई टेंशन होगा उससे. 71 war, but then it was a different situation. War is a different situation, because here जो insurgency और terrorism में हम why it is a little more trickier than war, while war is obviously has its own connotation. It's more difficult because when you are inside, the biggest thing is to differentiate between who is the friend, who is the enemy. Because you will know that is the biggest challenge. So and then when you are fighting among your own people, you don't want to hurt your own people. You don't want to hurt innocent people. So which means that you have to be extra careful. So when you are extra careful and the other guy doesn't have to be careful, then it's more dangerous for. So that's where the complexity comes in. So good to know, like obviously very difficult thing be, but during your tenure, मतलब which all important operations you were part of, आप पूरा डिटेल्स नहीं शेयर करो, आप ये बताओ कि कौन से ऑपरेशन में पार्ट थे, हाउ इट वाज टेंस्ड, और वी टॉक अबाउट कि कितना वो डिफिकल्ट था. I think जैसे I think I did mention that I have served in the insurgency areas or counter-terrorist operations, both in Kashmir and in the hills of Manipur and Nagaland. So I mean there are many I think instances where we went through tough times, and I think we had our share of success and everything. So I think particularly to call out, I mean I really can't actually unless there is a specific instance, but I think you can rather talk about any difficult scenario which happened with you rather than operation, कि you felt कि इसमें ये थोड़ा difficult था, and ऐसा कुछ instance जो आपको याद हो. या आई थिंक उस हिसाब से एक इंस्टेंस जो आई थिंक जो मेरे दिल के करीब है वो एक्चुअली एक इवैक्यूएशन का सीक्वेंस है. एक्चुअली ऑपरेशन तो हो गया था, ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ कि वन ऑफ आवर जवान्स, ही गॉट इंजर्ड, ही हैड 5 bullets, and as we were in the field, we were giving the basic first aid, and उसके बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि ये his injuries are little serious and he needs to be evacuated, and remote area है, and मतलब
कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो रास्ते बहुत कम होते हैं, कच्चा रास्ता है, तो वो एक ही रास्ता था जहाँ से हम उसको इवैक्यूएट कर सकते थे। हमारे पास एक ही गाड़ी थी उस टाइम पे, तो इसको हमने गाड़ी में डाला। एंड देन होता क्या है कि आदमी जब ज़्यादा इंजर्ड होता है, एंड देन आफ्टर अ वाइल वो देर आर सम नेगेटिव थाट्स ऑल्सो कम टू इनटू दैट पर्सन। तो ही वाज in fact he is also retired now, and he is healthy and healthy as ever, so I can actually take his name. So सुरेश को, तो सुरेश वो कहने लगा कि साहब मेरे बच्चे हैं, उनको बताना कि मैं प्यार करता था। तो एंड देन that's the situation where as a leader you need to step up. So आप उसको गाली भी देते हो, देन उसको बताते हुए कुछ नहीं होगा, तेरे को निकाल देंगे। एंड उसको हम गाड़ी में निकाल रहे थे। वो जिप्सी, अगर आपने देखा होगा उनको ना, तो जिप्सी का जो पीछे वाला हिस्सा है खुला होता है, तो उसको सीट फोल्ड करके हमने उसको उसमें लिटाया हुआ था, ड्राइवर और ड्राइवर के साथ में एक को ड्राइवर। एंड देन इसको बेसिकली हम जब फर्स्ट एड देते हैं तो जो आईवी होता है, आईवी लगा के, तो इसका आईवी का बॉटल, तो इसको फिर मतलब ये बेसिकली ही वॉज मेरे गोदी में लेटा हुए थे। एंड इसके एक्चुअली जो एक वन एरिया वेर ही हैड द बुलेट विच वॉज देयर वॉज अराउंड हिज स्टमक, सो दैट यू हैव टू कीप प्रेशर ऑन ए वुंड, बिकॉज अगर आप उसमें ब्लड लॉस जितना बचा सकते हैं उतना अच्छा होता है। तो मैंने उसका वुंड दबा के रखा हुआ था, एंड मेरे हाथ में उसका आईवी लाइन, एक हाथ में वो एंड वो लेटा हुआ था। तो एंड देन वी हैड वन मोर गाय हु वाज देयर, उसको बैठने की जगह, तो वो जिप्सी के पीछे ऐसे लटका हुआ था। एंड फिर हमने उसको निकाला, एंड आई थिंक हम प्रॉब्ली 10 मिनट हमने ट्रैवल किया होगा। तो वी वर टेकिंग अ टर्न, एंड देन सडनली वी वर एम्बुश्ड, वी गॉट अंडर सिवियर फायर। आई मीन फॉर हाँ, वहाँ से निकल रहे। तो ऑब्वियसली लेटर ऑन you can put, this danger is always there, we also realize, that's why we never use vehicles in those areas. But then this was a situation where you had to take this chance. So but then I think those guys, there were another set of guys who were probably aware that this operation has taken place, because obviously operation हुआ है तो fight हुआ है, आवाज़ हुआ, सबको आई होगी। So we got ambushed, and I mean it was bad because I think for next I think 5-10 सेकेंड, बट देन वो 5-10 सेकेंड पे बहुत लंबा लगता है आपको। 5-10 सेकेंड आपके पास गोलियां निकल रही हैं, आपको पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। एंड लकीली देन जो ड्राइवर था, तो आई आस्क्ड द ड्राइवर कि तू ठीक है करके, उसने बोला मैं ठीक हूँ सर। मैंने कहा तबा, एंड यू एट दैट टाइम वट एवर एडजेक्टिव्स यू यूज, एंड देन हमने वहाँ से गाड़ी निकाला। अच्छा, आप लोगों ने फायर बैक नहीं किया, कैसे कर रहे हो? अब जैसे मैंने बताया कि मैं था, एक जो को ड्राइवर था उसके पास था, उसने एक बार फायर किया, बट दैट इनिशियल रिएक्शन क्या है, बिकॉज आपका जो फायर इतनी नज़दीक से आता है ना, तो फर्स्ट इज टू डक डाउन, तो यू डक डाउन, एंड देन उसमें आई थिंक ही आफ्टर आई थिंक 3 or 4 seconds ही फायर्ड बैक, एंड सो इन दैट गैप वी crossed that part. It was a narrow ambush, thankfully, but not a very extended ambush. तो वहाँ से निकले, एंड देन सो दैट इज़ आई मीन जो लोग जो हम जब ट्रेनिंग भी करते हैं, प्लस तैयारी भी करते हैं, तो कई लोग हमारे सीनियर्स हैं, प्लस कई उस्ताद लोग बताते हैं कि हम बोल चाल में बोलते हैं कि अगर जिसका लिखा है ना उसका, तो वो अगर आप कहते हैं कि अगर आपका लिखा है कि आपको जाना है उस दिन, तो वो क्या है, गोली पेड़ के 4 चक्कर काटेगी, फिर भी आपको लगेगी आके। लेकिन जिस दिन नहीं लिखा होगा उस दिन कुछ नहीं होगा। तो ये वो एक आई थिंक आई कैन से दिस दैट इंस्टेंस जहाँ पे ऑल 4 of us नथिंग हैपेंड, मतलब नथिंग, इनफैक्ट ओनली द गाय हु वाज हैंगिंग आउटसाइड, उसके ग्रेव वुंड, उसके सिर के यहाँ से गोली छू के निकली है उसको। एंड इनफैक्ट जब उसको गोली लगी थी सिर पे, तो वो उसने सिर पकड़ा, वो पूरा अंधेरा है वैसे तो वो उसने बोला कि साहब मेरे लग गई है करके। एंड आई वाज मेंटली थिंकिंग कि यार एक ये पड़ा हुआ है, और ये तो मैंने कहा कहाँ लगी है, उसमें मेरा सिर पे लगी। मैंने कहा अंदर आ करके, देन मैंने उसके बेसिकली सिर पे हाथ फेरा ऐसे,
खून था उस पे। तो मेरा आइडिया ये था कि अगर मेरा हाथ में लगता है गीला होता है, मुझे पता है कि उसको लगा, बट नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं है तू, एंड लकीली इट वाज जस्ट अ ग्रेज वुंड। उसके मतलब बाल ऐसे निकले थे, ओके, बाल से निकले, मतलब जैसे ये बाल होगा ऐसे निकल गया। तो ग्रेज वुंड, तो उसके थोड़े से हिस्से में बाल उड़ गए थे उसके ऐसे। एंड तो वही एक, एंड देन हम एक अलग अबाउट 3-4 किलोमीटर के बाद हम एक बेस पे पहुंचे। वहाँ पे हमने इसको गाड़ी से निकाल के दूसरे एम्बुलेंस में डाला एंड फिर इसको एवैक्यूएट कराया टू श्रीनगर, जहाँ पे हेडक्वार्टर्स, यहाँ मेन अस्पताल है। एंड श्रीनगर में पहुँचे एंड देन आई मीन वहाँ पे तब तक ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज पास, पीपल वर रेडी, द सर्जन्स वर रेडी। हम लोग इसको ओटी में लेके गए एंड मतलब एज यू नो लक वुड हैव इट कि इसका और मेरा ब्लड ग्रुप एक था, तो इसको जो ऑब्वियसली इसने ब्लड लॉस था इसका, तो इनफैक्ट इसको जो इमीडिएट सर्जरी के लिए आई ओनली यू नो गिव हिम ब्लड। सो यू नो दैट आई मीन व्हेन यू सी द एंटायर सीक्वेंस यू फील कि यू नो समवेयर यू नो आई थिंक भगवान का हाथ था कि बोला कि यार इसको कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं हुआ उसको। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई मीन आई स्टिल हैव वेरी यू नो फ्रेश memories of this entire thing. Now just Suresh sir is now retired. Yeah, he's retired, and in fact, I mean, he was one of the very fittest guys in the unit. Okay. He was a karate black belt, and no, he was a very good runner. And Suresh now does a lot of ultra marathons. You know, he's fit as anybody can be. Interesting. So like how, like obviously जो आपने अभी बताया, it is like obviously doesn't happen in a day, तो इसके लिए आपको mentally, physically सब तरह से prepare होना पड़ता है, तो obviously it goes a hard training. तो like I'll be asking because ये सब चीज़ों के बारे में तो चलो when you are ground actually, उससे पहले की तैयारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. How was your training like, कि इतना क्या process होता है स्पेशल फोर्सेस में? like आर्मी का चलो पता है, एयरफोर्स, नेवी, सबके अलग अलग तरीके से लोगों की एंट्री होती है और दे गेट एडमिटेड, सबकी ट्रेनिंग भी दूसरे तरीके से होती होगी. फॉर द स्पेशल फोर्सेस व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लाइक ट्रेनिंग, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू गेट इनटू इट? स्पेशल फोर्सेस का क्या है कि स्पेशल फोर्सेस में एक तो चुने हुए बंदे आते हैं, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस आई मीन इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर इट्स अ वॉलंटरी फोर्स. मतलब आपको उसके लिए ऑप्ट करना है. अगर आप ऑप्ट करते हो फिर आपका एक प्रोबेशन पीरियड होता है, अमूमन 3 महीने का होता है. तो उस प्रोबेशन पीरियड इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि वो उसमें आपको मतलब वो एक व्हाट यू कॉल इट सेग्रीगेशन प्रोसेस है, आप मान लीजिए कि एंड द सक्सेस रेट्स आर वेरी वेरी लो इन दैट, यू नो. समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन, समटाइम्स एज लो एज यू नो 20%. अगर दैट मीन्स इफ 100 people come, only 10 get or 20 get selected out of that. So and वो 100 जो आते हैं वो भी किसी फिल्टर से ही आते होंगे ना? They all come from army only. अगर army special forces हैं, like जैसे मैंने बताया कि I joined the infantry, and like infantry there is armored, there is artillery, so anybody can opt anytime. You have certain age criteria obviously, because you know you want people coming in at a younger age, you know. So when you opt, you get allotted a unit for probation, you join the unit, and then you are then you go through this process. Major part of the process is your physical endurance obviously, but there is also a mental angle to it. How, you know, as you go along the probation, you are put under tremendous mental pressure. You know, you are given work at odd hours, you are deprived of sleep, and you are deprived of sometimes food and water, to basically put you under pressure and put you through the task. So तो ये जज करते हैं कि आदमी जब भूखा है, प्यासा है, थका हुआ है, तो मेंटली कैसे रिएक्ट करता है. एंड व्हेन आप जब ये कर रहे हैं तो उसमें आप एज ए ग्रुप कर रहे हैं. अच्छा, आप इंडिविजुअली नहीं कर? एज ए इंडिविजुअली नहीं है, तो यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप. बट ऐसा भी होता है ना कि बहुत बार लोग एक या दो इंसान कहीं फंस गया बिना खाना पानी के, वो भी तो सिचुएशन आता है. तो हाँ, वो जो हम वो एक
प्रोबेशन के हिस्से में वो एक अलग सा एक सेगमेंट है जहाँ पे एस्केप एंड इवेजन एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर आप यू आर व्हेन आई एम सेइंग ग्रुप आप मैं सेइंग प्रोबेशन हैपेंस एज अ ग्रुप देयर आर सर्टेन टास्क व्हिच यू आर डूइंग आइदर singularly or in a buddy pair, like you are doing say a navigation exercise. So usually you do it as an individual or you do in a pair of two people as a buddy. So you will have escape and evasion over 40-50 kilometers you do, and then many of the tasks you're doing जो आपके individual tests हैं वो तो individual ही हैं, आपको खुद ही करना है। तो आप जब इससे निकलते हैं तो एटलीस्ट you are able to select the better people out of the lot that you're getting it. आपने एक स्टैंडर्ड लेके आए तो यू नो दैट आपका इनटेक इस स्टैंडर्ड में। उसके बाद नाउ दैट इज ओनली द बिगिनिंग। thereafter your actual training begins. You are actually then you are supposed to go through your skill training. If you have aptitude for weapons, then you go as a weapon specialist, and then you communication हो गया आपका, जो medical skills हैं, demolition है, basically dealing with explosives, then navigation is a skill, then your special skills like what I mentioned about parachuting, the combat free fall, underwater diving. So all these things. So it's a continuous process, and then the training never ends, because you are treating every day as an opportunity to learn something, and obviously when you are going in operational area, so this mentality has to be there that you are बिकॉज आप कहीं पे भी कंप्लेसेंट हो गए तो फिर आप मार खा सकते हो, तो वो नहीं आने देना है। तो मतलब पहले आर्मी में घुसना जरूरी है बिफोर अप्लाइंग टू दिस स्पेशल फोर्स। एग्जैक्टली, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, लाइक से कहीं से भी। सो आप डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो? नहीं, डायरेक्टली नहीं। आपको आर्मी में आना ही पड़ेगा, उसके बाद आप ऑप्ट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। तो लाइक जब ये ट्रेनिंग होती है, जब ऑब्वियसली व्हेन यू got into it and it's been 20 years you served, obviously you stay very far from your family, तो ये एंगल हमेशा दिखाता है कि एक फौजी अपने घर से बहुत दूर है, हमें मिल नहीं पाता है। तो when you got retired, actually the time when you left, what was the first thing which you did in your life after getting retired, or how did you spend time with your family, because 20 साल आप मुश्किल से ही गए होंगे घर में। नहीं, आई मीन दिस इज समथिंग आई थिंक प्रॉब्ली इट्स प्रॉब्ली नॉट द करेक्ट इम्प्रेशन कि आप टोटली कट ऑफ होते फैमिली से, बिकॉज जैसे आर्मी में एरियाज हैं, जैसे आप ऑपरेशनल एरिया है, फिर देयर आर पीस एरियाज ऑल्सो। सो व्हेन यू कम टू द पीस एरियाज, यू फोन पे नॉर्मल बात कर सकते हो जैसे करते हो। हाँ, अभी जैसे इनफैक्ट इन माई स्टार्टिंग डेज उस समय कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, बट देन सिंस आई वुड से 2001-2 के बाद तो आई थिंक मोबाइल्स आ गए थे, एंड आई थिंक इतना कॉमन नहीं था, बट आई थिंक 2005 ऑनवर्ड्स आई थिंक इट वाज वेरी कॉमन मोबाइल्स। 2001-2 तो फिर भी इट वाज वी यूज्ड टू स्टिल डिपेंड ऑन द एसटीडी एंड एवरीथिंग, बट 2005 इट वाज फेयरली कॉमन। बट आई एम सेइंग कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो पीस स्टेशन है, जैसे आर्मी जो डिप्लॉयड है आपकी, उसके अलावा देर आर एरियाज जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी आर इन बैंगलोर, सो बैंगलोर ऑल्सो हैज आर्मी स्टेशंस, करेक्ट, सो दीज आर पीस स्टेशंस। So normally you get a rotation, like you're going to operation, you get a break also, you come back to field peace stations. So when you're coming to peace stations, you are able to stay with the family. So it is not that 20 years you're cut off. And then while you are in the operational area also, you always get breaks to go back home. Say once in 4-5 months, you are able to come back home, spend 3-4 weeks. So I mean that much is taken care by this system, that you are not totally cut off. तो आप जब when you got retired, तो फिर आपने like ऐसा क्या किया, like for example आप या तो फिर आपने obviously you are working now as in corporate in a company, but उसके पहले एक समय आया होगा जब रिटायर होने के और ज्वाइन करने से पहले, like is there any something which you did or you wanted to do you have not done for so long? No, obviously, I think now after retirement, I have more time for my, for the family, because so
there are, I think, I think I've been able to, see my kids grow up. I think from school to my elder son is in now college. So that's a journey that, maybe, I think when I retired, he was probably 9th or 10th. So, yeah, ninth class. So now that is something. So so that constant, I would say, that companionship is something that has been, a blessing and advantage. And obviously you can plan things better when because you know that आपका वो disruption नहीं है आपको कि you are engaged for a longer time in operational area, and then mentally I would say probably you are at a little peace, because see, the biggest responsibility while you are in the army is that you are responsible for so many lives. Because see, when you are commanding a unit, you are responsible for more than 1,000 people. Correct. So that weighs on your shoulder and mind, because you are responsible for everything, their administration, training, their welfare, their leave planning, and everything. So and obviously when you are in operational area, you're responsible that your decisions should not cause any harm to them. तो वो बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो वो आई थिंक दैट इज, आई वुड से, द बिगेस्ट डिफरेंस फ्रॉम while in uniform. Not now, I am probably not responsible for any other's life. I am only responsible for myself. बट फिर भी आपके मन में ऐसे तो रहता ही होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी, जैसे 2020 के बाद जब भी आप कहीं जाते हो, कुछ हो रहा है. नहीं, वो तो है. सी, वो बॉन्डिंग तो रहता है अभी भी. जैसे इफ आई मीट somebody whom I have not met for last 5 years, we will connect just like that, because वो that will never go. वो रहेगा. फिर साथ में आपको मान लो आपके आसपास भी अगर कुछ ऐसा चीज हो रहा है तो आपको वो you do get a feeling, and in fact you do get and in fact at times you feel kind of you miss not being there. That is also. ये भी होता होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हो रहा है अभी जैसे 2024-25 में, एंड यू आर नॉट. हाँ, जब होता है तो you feel probably you missed being part of it. Yes. And when you stay among like normal people, like citizens मैं बोलूँ, जब उनके बीच रह रहे हो तब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सोचे कि अंदर में भी ऐसी चीज़ें हो रही है. उसको भी देख के आपको थोड़ा लगता होगा ना कि मतलब हम बाहर इतना, मतलब लोग बॉर्डर पे लोग इतना अपनी जाने दे रहे हैं और अंदर में लोग ऐसे करते रहते हैं. जैसे हमें भी लगता है कि लोग यहाँ पे ऐसे ये क्यों कर रहे हैं, एंड लोग वहाँ जान दे रहे हो, फिर यहाँ पर लोग अंदर में लड़ मर रहे हैं. तो वो चीज़ देख के थोड़ा तो होता है. बट आई होप ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्ट ओवर देयर मोस्ट ऑफ द टाइम. ये लिमिटेशन तो रहेगा ही. I mean you do sometimes. Yes, you're right. You do. How you're feeling in the corporate working environment now? I think ये probably ये transition, I think mentally बहुत ज़्यादा important है rather than physically. Correct. Because you have to change your what do you say, outlook, because because so I think you have to get adjusted to because corporate, as you say, it's mostly a flat culture, and I think the biggest change for me probably is that you need to accept that people will call you by name. A person probably who's just joined the company, maybe just from college, he will also address you by your name. So I think and if you are mentally okay with that, I think rest things are probably not that complicated. एंड फिर उसके बाद वहाँ भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने पूरे बटालियन के साथ ऐसे दोस्त, और आप एक दूसरे को मतलब ऐसे एकदम छेड़खानी करते रहते हैं. वो चीज़ यहाँ कॉर्पोरेट में पॉसिबल नहीं. वो कर सकते हैं बट ऐसे ओपनली नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो आपका जो आई वुड से द लेवल ऑफ कमिटमेंट विद, you cannot expect everybody to have that same level of commitment. Exactly. Because I think a lot of things are transactional than more relation based over here, and वहाँ पर is more about relation. There it's all about relation and trust. Interesting. Last thing which I'll be asking you, like how difficult is to live a life where you feel that it might end tomorrow? I mean, it's not probably not categorized as easy or difficult. I think it's an attitude, because and obviously when you are putting on the uniform,
somewhere your training and the ethos and what you learn from your peers and seniors. So I think this is an ingrained thing in anybody who dons a uniform, that while your aim is to win wars for your country and and do good for your citizens, but then in that act there is always a chance that you might have to go beyond the call of duty, because everything cannot be written down. There are some things which come as part of the ethos and culture. So I would say, I mean, because at that point of time, you are you're doing it because there are people who are fighting along with you, and you don't want to let them down. So I think that feeling is only about the man next to you. You at that point of time, you're not thinking about say you're not thinking about कि ये देशभक्ति का काम है या फिर मैं देश के लिए कर रहा हूँ. I mean लार्जर सेंस में कहीं ना कहीं वो है, बट उस समय जो भी एक सोल्जर या ऑफिसर जो कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो अपने साथ वाले को लेट डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि हम साथ में लड़ रहे हैं. हाँ, तो वो द फीलिंग इज दैट आई कैन नॉट लेट डाउन द मैन नेक्स्ट टू मी, और आई कैन नॉट लेट डाउन माय यूनिट. कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नहीं है वहाँ पर, वहाँ बिकॉज आई थिंक वो यू आर इन अ स्टेज विच इज बियॉन्ड ऑल दिस. यस. With this, thank you so much, sir. Thank you so much for keeping all of us safe, being a part of this, and thank you so much for accepting the invite to doing a episode with me. Thank you so much. I enjoyed the conversation, and I hope your listeners find some value in this. Thank you so much. Thank you.